Good evening, everyone. I am welcoming you on behalf of our President, Dr. Shubhoshri Sarkar, Jamshedpur Sahodaya School Complex. I welcome our resource person, Rekha Pachori ma'am, and all the participants to today's training on joy in learning. Ma'am, please start the meeting. Yes. A very good evening to all the participants who are here to attend this session on Join Learning. All right, so let me just share my screen. Is the screen visible and am I audible and visible too? Yes, ma'am. All right, so let us start off. This session is special for all the teachers since we are part of this entire journey where we help our students to learn from us, right? So, unless there is a lot of joy in learning, I don't think learning can be possible fruitfully, right? Yes, we can teach in the class, but how much does it get across the students and how much are they enjoying is what matters the most. So here is one quotation that I would want to start off with. The joy of learning is as indispensable in study as breathing is in running. So when we undertake a race or something, we are always told to control our breath in such a way that we're able to sustain the journey of running. It is in the similar manner that I would say that as a teacher, we must add this ingredient called joy while we are trying to teach them in the class, because it will have a better effect. It will have a long lasting effect. All right. So let me take you to the next slide. Um, as I go ahead, this is a beautiful verse that I came across, and I thought I must share it with you. This is what a student, a child in your class feels. Sunshine in the morning, rainbows in the sky, like birds on a journey, we soar up high. We build a bridge with what we know. We get to reap what we sow. Sunshine in the morning, get ready to go. A bright tomorrow begins today. We learn new things every day. We are lifelong learners, always a step ahead, a world of wonder, of knowledge too. We'll take our chances not in vain. We make mistakes, we will try again. That is the joy of learning. So, when we encourage children to learn in the classroom, there is a lot of things that goes on. Sometimes it is success, sometimes it is failure, sometimes it is instant learning, sometimes it is a struggle. But when we add joy to what we are trying to teach, the learning becomes fruitful, and you will find smiles on the faces of children as you see the faces here, right? So, what is the difference between happiness and joy? Let us first differentiate between these two terms. All right. So, happiness is an emotion in which one experiences feelings ranging from contentment and satisfaction to bliss and intense pleasure. So, कोई चीज करके जो हमें तसल्ली मिलती है, that is contentment, satisfaction, तसल्ली जिस चीज को हम कहते हैं। और ब्लिस एंड इंटेंस प्लेजर वो होता है जब हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जिससे कि खुशी के कारण हम अपने आप को सातवें आसमान पे पाते हैं, राइट? सो दैट इज हैप्पीनेस। नाउ इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेशन। जब कोई इंसान खुश होता है तो वो किस तरह से एक्सप्रेस करता है? अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस करता है, अपने बातों के थ्रू एक्सप्रेस करता है, अपने एक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस करता है, राइट? सो हैप्पीनेस इज अ स्टेट। थिंक ऑफ इट एज अ 100 स्टोरीड बिल्डिंग। आप इमेजिन करिए कि हैप्पीनेस एक 100 स्टोरीड बिल्डिंग है, 100 माले की एक बिल्डिंग है, एंड ईच लेवल करस्पॉन्ड्स टू अ हैप्पीनेस वैल्यू।
और हर फ्लोर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, खुशी का पैरामीटर वैसे वैसे बढ़ता जाता है, राइट? एंड दैट हैप्पीनेस विल परसिस्ट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। जब आप स्टेप बाय स्टेप जब क्लाइंब करते हैं, किसी भी स्टेयर पे चढ़ते हैं या चढ़ाई चढ़ते हैं या उड़ान भरते हैं, तो जब हम स्टेप बाय स्टेप उसको समझ के, उसको फील करके बढ़ते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वो आपकी लाइफ में टिकने के लिए आता है, राइट? जॉय इज अ स्ट्रॉन्गर बट लेस कॉमन फीलिंग देन हैप्पीनेस। नाउ हैप्पीनेस तो देखिए, जैसे छोटी छोटी चीजों में हमें खुशियां मिल जाती है। जॉय वो फीलिंग होती है जो विच में नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो हम फील करते हैं, वन फील्स इट ऑन अचीविंग समथिंग स्पेसिफिक। कुछ बच्चे के आपने क्लास में टेस्ट लिया, the child, like 5 children receive 10 on 10 on that test. That joy of receiving that 10 on 10 today in this test may not happen again in the next test, may happen also. So इसकी श्योरिटी नहीं है, पर जॉय वो शॉर्ट लिव्ड जो मोमेंट्स होते हैं उसको फील करने को कहते हैं, राइट? इट इज एक्सप्रेस्ड व्हेन देयर इज इनवर्ड पीस एंड कंटेंटमेंट। अगेन, अंदरूनी खुशी, क्योंकि मैंने मेहनत करी, क्योंकि मैंने टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ाई करी, इसलिए मुझे 10 on 10 मिले। दैट हैप्पीनेस इज, दैट लीड्स टू कंटेंटमेंट। When we talk about the term happiness in general, happiness can be for any reason. कोई कुछ कर रहा है उससे भी हम खुश हो सकते हैं। जैसे आप टीचर हैं, आपके क्लास में 10 बच्चों ने बहुत अच्छी टेस्ट में नंबर पाए, तो आप उससे भी खुश हैं, पर अंदर आपके बाकियों की चिंता भी है। सो हैप्पीनेस इज देयर, बट concern for others may also be there. So joy is that sudden burst of happiness. जब पहली बार रिपोर्ट कार्ड हाथ में देखने में जो हमने मार्क देखा, वो जो सडन हैप्पीनेस है, उसको हम जॉय कहेंगे, राइट? सो जॉय इज लाइक द एलिवेटर। किसी बिल्डिंग की लिफ्ट को हम जॉय से कंपेयर कर रहे हैं। इन दैट बिल्डिंग दैट टेक्स यू अप टू हायर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। मैंने जैसे कहा, खुशी, हैप्पीनेस इज द 100 स्टोरीड बिल्डिंग, राइट? तो उस 100 स्टोरीड बिल्डिंग को अगर आपको टॉप फ्लोर पे पहुंचना है, तो आप एलिवेटर को यूज करते या है जॉय is the this happiness only for a small amount of time and back. अगर अब एक बार आप पहुंच के उतर गए, उसके बाद आप कहीं और निकल गए, तो आपका जॉय का जो रीजन है वो चेंज हो जाता है। सो जॉय मे नॉट हैव वन रीजन टू स्टिक टू। You will have lot of reasons in your daily life to feel that moment of joy, right? आप घर में आए, आपके पसंद का खाना बना है, आप एकदम अचानक से बहुत खुश हो गए, बहुत खुशी के साथ आपने खाना खाया, राइट? सो this is what makes a difference. All right. So joy has a lot of things that you talk about. It can be, feelings that can be reached through lot of reasons, right? कई बार छोटी छोटी चीजों को देख के हम खुश हो जाते हैं। कई बार किसी की फीलिंग्स को आप महसूस करके भी खुश होते हैं। सो हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ चलता है, वो हैप्पीनेस का कारण होता है। और जॉय इज बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग विद इन अस। जो अंदरूनी खुशी है, वो जॉय के रूप में एक्सप्रेस होती है, और जो एक्सटर्नल प्लेजर है, वो हैप्पीनेस के थ्रू हमारी एक्सप्रेस होती है। नाउ कैन वी चेक वेयर वी स्टैंड? सो एज अ टीचर, when we look at this joyometer क्या होता है? हम कितनी खुशी लोगों को दे सकते हैं, या कितने बाकी लोग हमसे कितनी खुशी महसूस कर सकते हैं? Where are you at in this scale of 0 to 4? Where do you stand? Where are your students also from the on the scale that you see here? So 0 is completely joyless, जिसमें कोई खुशी नहीं है, कहीं से भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। रेयरली जॉयफुल, मतलब कई बार ओकेजनली मुझे जॉयफुल
महसूस होता है, समवॉट जॉयफुल, कुछ कई कई बार मुझे बड़ी खुशी होती है, मोस्टली जॉयफुल और जॉयफुल जॉयफुल. So as a teacher, every time you enter the class and you start teaching the children, आपका जॉयोमीटर जो है ऑन हो जाना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि मेरे बच्चे मेरे पढ़ाने का भरपूर मजा ले पा रहे हैं कि नहीं, एंजॉयमेंट उनको मिल रही है कि नहीं, आर दे इन अ जॉयस मोमेंट और नॉट, राइट? दिस इज व्हाट यू शुड आस्क योरसेल्फ. एंड एज अ टीचर, हाउ हैप्पी आर यू टू बी इन द क्लास? क्या आपको भेजा गया है इसलिए आप क्लास में हैं? क्या आप क्लास में इसलिए है क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, इसके अलावा मुझे बच्चों से कोई लगाव नहीं है, और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, इसलिए मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैंने चैप्टर पढ़ के सुना दिया, क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, मेरा काम खत्म हो गया. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर mindset is. As a teacher, if your mindset is to make sure that children learn from you, children are benefiting from you, and children look forward to your class एवरी सिंगल डे. अगर आपका बच्चा इंतजार करता है क्लास में कि मैम आज कल आपने छुट्टी क्यों ली थी, कल आप नहीं आए थे, वी मिस्ड यू, वी वांटेड यू टू बी द पार्ट ऑफ द क्लास. जब बच्चों को ऐसी फीलिंग अंदर से आती है, तब आप समझ सकते हैं कि दे आर completely happy to be part of your class, right? One. And secondly, they feel good to learn from you. You are a good teacher. So this joyometer will tell you about how you feel in the class and how students feel in the class, right? Okay. So what kind of environment promotes the joy in learning? अगर आप क्लास में joy in learning की बात करते हैं कि ये joyful moment क्लास में कब आता है? So a classroom where joy in learning exists is one in which students are given appropriate levels of challenges. देखिए, पका पकाया आप बच्चों के हाथ में रख देंगे तो there are no challenges, right? Is there any problem with the slide movement? Am I audible, and are the slides moving visible to everybody? Because I think some of you are writing it. You will have to check your connectivity also. All right, thank you so much. So as I said, once you make learning challenging for them, पका पकाया बच्चों को नहीं देना चाहिए. देखिए, आपने एक चैप्टर पढ़ाना है क्लास में, अगर आपने इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास में कर दिया और बच्चों से ये भी कहा कि ओके, टुमारो वी विल बी डूइंग दिस एंड आई वुड वांट यू टू हैव some learning or understanding on this particular topic, or some interesting facts that you can collect on the topic that I'm going to teach tomorrow. देखिएगा बच्चों में वो इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि आई शुड बी द वन टू कंट्रीब्यूट इन द क्लास, एंड दे स्टार्ट रीडिंग मोर. और आज का जनरेशन ऐसा है जो ऑनलाइन रीडिंग बहुत करता है, इंटरनेट का बहुत यूसेज करता है. सो इट इज इजी फॉर देम, एंड यू कैन एक्चुअली लेट देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, right? So in which they are able to make decisions about their learning. मुझे इस टॉपिक के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये बच्चा खुद डिसाइड कर पाता है, राइट? बिकॉज it is his interest that would make him go ahead. Bipin, I think you'll have to check your connectivity. I think there is an issue with your connectivity. All right. When students are faced with difficulties, there should also be a support system in place to help them. कुछ चीज बच्चों को समझ में नहीं आती है, या कुछ चीज उनको कंफ्यूज करती है, या दे आर सीकिंग फॉर मोर आंसर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, you as a teacher must always be there for them to guide them and support them. आप उनको ये कह के चुप करा के नहीं बिठा सकते कि ज्यादा ही सवाल करना आता है, चुपचाप बैठना नहीं आता है, let me teach in the class. This is a wrong way. And let me tell you, teachers, teaching should be taken as a profession which has a lot of passion within us, right? हम टीचर इसलिए नहीं बने कि हमें और कोई नौकरी नहीं मिली है, हम टीचर इसलिए बने हैं क्योंकि हम इस प्रोफेशन को वैल्यू करते हैं, हमें लगता है कि हम इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर सकते हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन, लर्निंग और जो मेरी नॉलेज है उससे बाकी के बच्चों को बेनिफिट होगा. दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ एवरी टीचर इन दिस entire universe, because we are the ones who create students in this world
फॉर बेटर पोजीशंस। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उसका कुछ ना कुछ श्रेय टीचर्स को जाता है, क्योंकि उनकी ही मोटिवेशन, टीचिंग या पुश के कारण बच्चे आज वहां पहुंचे हैं जहां हम उनको देख रहे हैं, राइट? At times there are children who are, and yes, nation builders. Rajesh, you're completely right, and I agree with your frame of word which says nation builders. We are the nation builders, right? So teachers role to add joy in learning. How can a wise teacher make learning a joy? As a teacher, हम joyful learning कैसे कर सकते हैं? Now, here are a few pointers that we are looking at. Actively continues developing his or her professional skills. देखिए, मैं टीचर हूं, अगर मैंने किसी भी साल में 19 समथिंग में मैंने अपना बीए किया, एमए किया, बीएड किया, एमएड किया, जो भी किया, मैंने कितने साल पहले किया, अगर मैंने अपनी पढ़ाई को अपग्रेड नहीं किया, उसके में एडिशंस नहीं किए, लाइफ लॉन्ग लर्नर मैं नहीं बना, तो मेरी लर्निंग का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई विल बी स्टैग्नेटेड at that level when I finished my studies. So a teacher must continue to develop professional skills. देखिए, हमें not only our subject related learning के बारे में ध्यान रखना है, हमें अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप करना है, हमारे बिहेवियरल पैटर्न जो एक बच्चों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो, वो भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टेंटली वर्क्स टू कनेक्ट स्टूडेंट्स विथ आइडियाज। वो टीचर जो अपने बच्चों के साथ कंटिन्यूअसली पढ़ाई को एक नया रूप देने में successful hota hai, the teachers who are ready to put in effort to give the best possible knowledge to children are the ones who add joy in learning. The teachers who use positive and motivating energy and humor. देखिए, पढ़ाई, एक टीचर बहुत सीरियस नोट में क्लास के अंदर जाके पढ़ाता रहेगा तो भी शायद बच्चे उनको पसंद नहीं करेंगे। ह्यूमर होना बहुत जरूरी है, मजाक मस्ती करना जरूरी है बच्चों के साथ, ऐसे चीजें उनके साथ डिस्कस करना जरूरी है जिससे उनके चेहरों पे मुस्कान आए, हंसे, खिलखिला के हंसे और उस बात को याद कर करके खुश होए, राइट? कई चीजें होती है जैसे बच्चों को हम बताने लगते हैं तो उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है, दे एंजॉय लिसनिंग टू वॉट एवर you try to teach them, right? So it is important as a teacher to make sure that you are teaching them not only the knowledge that is required but also whatever information you can give as additional information. Shares teaching purposes and goals with the students. जब तक हम बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि आज ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इससे क्या आपको गेन होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर टीचिंग दिस टॉपिक क्या है, जब तक हम बच्चों को नहीं बताएंगे इससे मैं क्या क्या सीख सकता हूं, तब तक टीचर और स्टूडेंट में कनेक्ट नहीं हो सकता है। बिकॉज अनलेस यू मेक इट वेरी क्लियर दैट लर्निंग दिस टॉपिक विल हेल्प यू इन दिस और योर प्रीवियस नॉलेज विल हेल्प यू टू add information to the knowledge that you are trying to gain right now. Okay, one who helps students see real world connections and relevance of content. देखिए, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं, you if you give them examples from day to day life, right, then you will be able to make sure that children are uh, benefiting from your learning. That is what will make them go ahead and ask for more, right? A teacher who encourages students to develop ideas on their own. सब कुछ मैंने बता दिया तो बच्चे क्या करेंगे, तो वो element of questioning आना चाहिए बच्चों को, right? So you give them that information which will help them to um, to 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 explore more, right? So exploration बहुत जरूरी है. To deliver high expectations with multiple opportunities to reach them. अब टीचर की expectations एक होती है और बच्चों से हम लोग क्या उम्मीद रखते हैं, what is the contribution that they will make is something that we have to look into. I hope I'm clear so far and everybody is able to
hear me, see me, and see the presentation also, right? Okay, let me go ahead. Okay, so let us all remember very clearly, as teachers, we are educators. So we as educators have to ensure that children's spirit to learn, their sense of wonder, their curiosity about the world, and their willingness to care for the human condition are encouraged through our teachings, or else the question will remain, have we succeeded as educators? No matter how well our students do on standardized tests. देखिए, हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों ने भी रट के जवाब पेपर में लिख दिया, right? Is this our aim of teaching them in the class? Is the question, right? जब तक बच्चे हमारे द्वारा सिखाई गई टॉपिक्स को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको डे टू डे लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं, वो जानना जरूरी है. Then your conditions, human conditions are, human touch that we give, through our learnings has to be taken care of also, right? Human touch क्या होता है? When we are trying to give them values through what we are teaching, right? Value education through your teaching is very important. हर बार आप जब क्लास में कुछ पढ़ाते हैं तो make sure that there is some value that is inculcated in the class, right? Value education will help them not only learn what is being taught but also apply it in their day to day life. कई बार होता है कि जैसे बच्चे किताब नहीं लाते हैं तो आप उनको बोलते हैं ना कि आप अपने बगल वाले के साथ शेयर करके पढ़िए, राइट? छोटी छोटी सीख होती है, कितना विलिंगली वो दूसरा बच्चा उसके साथ बुक शेयर करता है, राइट? आपको एज अ टीचर बहुत ऑब्जर्वेंट रहना जरूरी है. यू हैव टू ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एवरी चाइल्ड. आर दे डूइंग थिंग्स विलिंगली और आर दे डूइंग इट बिकॉज यू आर टेलिंग देम, राइट? So willingness to care has to be from within, and this value has to be taught in the class regularly by teachers, right? So what gives joy in learning? तो ये खुशी आती कैसे है क्लास में? A teacher has to be joyful to lead a joyful learning experience. देखिए, अगर आप खुद खुश ना हो तो बच्चों को किस तरह से खुश रखेंगे? तो घर में झगड़ा करके अगर आप निकलते हैं और क्लास में आके पढ़ाने की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज आपके दिमाग में एट द बैक ऑफ योर माइंड देयर इज समथिंग दैट हैज बीन बॉदरिंग यू. मेरा एक ही कहना है जो मैं कॉन्स्टेंटली टीचर्स को कहती हूँ कि जब आप घर से निकलते हैं तो घर का जो भी बर्डन है घर के अंदर छोड़ के निकलिए, राइट? और स्कूल में आने के बाद सिर्फ स्कूल के बारे में सोचिए, बच्चों के बारे में सोचिए, पढ़ाई के बारे में सोचिए, पढ़ाने के बारे में सोचिए. जब आप ये इसको माइंडफुलनेस कहते हैं. जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप अपना काम और अच्छे से कर पाएंगे, राइट? सो अ टीचर herself or himself has to be joyful to make learning joyful in the class, right? Always remind yourself why you choose this profession. क्यों बनी मैं टीचर, क्यों बना मैं टीचर? ये अपने आप से बार बार ये सवाल करिए. अगर आपका जवाब कहीं पर भी नेगेटिव है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि ये नौकरी छोड़कर आप फिर कुछ और करिए, बिकॉज जब तक पैशनेट नहीं है टीचर तब तक टीचर बनने का कोई गुण आप में दिखाई नहीं देगा, राइट? सो ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ हु यू चूज, व्हाई यू चोज दिस प्रोफेशन, एंड दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्फ्लुएंस यंग माइंड्स. मैं टीचर हूं और मेरी जिम्मेदारी है मैं बच्चों को करेक्ट नॉलेज दूं, राइट? प्रॉपर नॉलेज दूं, खुशी के साथ पढ़ाऊं और उनकी लर्निंग उनको आगे बढ़ने में मदद करे, राइट? सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग यंग minds who will be citizens of the world tomorrow and to lead and to influence their own and the next generation. आप सिर्फ इस जनरेशन वाले बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उनको इस तरह से तैयार कर रहे हैं जिससे कि दे विल बी एबल टू डू a better work when they are leading as an example for the next generation that they would be dealing with, right? So you are dealing with this generation
and this generation will for ahead take care of the generation which will be coming after them. So it is important that we are very genuinely good teachers with them. A teacher must have her content thoroughly planned. जो पढ़ाने जाओ उसको आप प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाए, इफ बट कहीं पे भी क्लास में नहीं होनी चाहिए. A teacher must use various teaching methodologies to keep the class excited. ये क्लास में जाके खाली लेक्चर मेथड में पढ़ाना ये गलत है. आपको तरह तरह से बच्चों को चीजें समझाने का प्रयास करना चाहिए, राइट? व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज that you can use in the class for making learning joyful is what you have to look into. As teachers, we must create joy in the classroom as it facilitates more learning and certainly faster learning. किसी भी चीज को आप एक बहुत अलग अंदाज में प्रेजेंट करते हैं ना क्लास में, तो बच्चों की नजर उस पर पड़ती है और सीखने का काम फटाफट होता है, राइट? What happens inside schools has a deep and lasting effect on the mindsets that children develop towards lifelong learning. आपको मैं अगर ये सवाल करूं कि आपका फेवरेट टीचर आपकी लाइफ में कौन था, तो आपकी जुबान पे कोई ना कोई नाम जरूर होगा, राइट? और वो क्यों होगा? क्योंकि आप उनकी टीचिंग मेथड से बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, आप उनके पर्सनल टच से शायद इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, शायद आप आज जो कुछ है उनके एनकरेजमेंट के कारण है. So please remember that all of us and the children in the class will always have the impact of this teacher on them, right? So be that teacher who will have a lifelong impact on children, which is positive, right? A teacher affects eternity and one can never tell when his influence stops. देखिए जो आपका influence है बच्चों के ऊपर, उसकी हद कहां तक है ये आप कह नहीं सकते हो, right? It is because sometimes these children would want to take suggestions from you even for their personal little problems that they go through. वो आपसे डिस्कस करके या आपसे सजेशंस लेना चाहते हैं क्योंकि उनको आपके ऊपर विश्वास होता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विद चिल्ड्रन दैट दीज चिल्ड्रन विल ऑल्सो react. Okay, so we as educators have to take a closer look at why creating joy in school is about much more than just smiling faces. देखिए खाली smiling faces ही सब कुछ नहीं है. स्माइल के पीछे का राज हमें जानना जरूरी है. क्या ये जेन्युइनली बच्चा हैप्पी है, या इसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है और कहा जाता है कि देखो मस्त होके सारा काम करके आना, नहीं तो फियर के कारण बच्चा बिल्कुल जो भी काम दिया जाता है उसको करता जाता है, राइट? सो मोर देन 6 in 10 स्कूल चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड फील uninspired and unmotivated due to their school environment. ये सर्वे बोलता है कि 6 बच्चे out of 10 are not happy children in the school because they are not inspired, they are not motivated by the teachers. So अब अपनी मेहनत कहाँ तक होनी चाहिए ये हमको समझना पड़ेगा, because एक ही क्लास में अगर आपके क्लास में 40 बच्चे 50 बच्चे हैं, तो क्या मैं 40 और 50 बच्चों के ऊपर इंडिविजुअली अटेंशन पे करता हूँ, उनके बारे में जानकारी रखता हूँ, उनकी दिक्कतों में उनकी सहायता करता हूँ? दिस इज व्हाट वी मस्ट बी आस्किंग आवरसेल्व्स. सो बट व्हाट डज इट मीन फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड व्हाट नीड्स टू चेंज? So brain studies have found that information flows freely through the brain, which is key to emotions and memory. देखिए मेमोरी में कुछ भी चीज तब स्टोर होती है जब आप उसको बहुत अच्छे से उनको प्रेजेंट करते हो, अट्रैक्टिव वे में करते हो. जैसे हम कहते हैं ना कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, या आपको उनको कुछ दिखा के सिखाना चाहिए, क्योंकि वो देख के जब सीखता है तो वो दिमाग में रह जाता है, राइट? सो चिल्ड्रन लर्न मोर इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सटेंसिव डिस्कवरी. एक्सटेंसिव डिस्कवरी कब होती है? जब आप एक चीज उनको दिखाते हैं तो और उसके बारे में वो और खोजबीन करता है और इंफॉर्मेशन गेन करता है, ऐसे इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है उनके अंदर, राइट? Removing joy can make students bored, anxious and less able to process information. देखिए अगर आप बच्चों को सिर्फ लिखाते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, बच्चे भी लिखते जा रहे हैं,
थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बच्चे लिख तो रहे हैं पर वो पढ़ तक नहीं रहे वो क्या लिख रहे हैं। उनके दिमाग में वो मैकेनिकल वर्क का प्रकोप रहता है। दे आर ओनली राइटिंग बिकॉज यू आर राइटिंग, they are not even reading what they are writing, right? So this is something that we have to look into. The challenge is, how do we create joyful learning in the classroom, right? How do we infect our children with enthusiasm? How do we bring fun and joy in the classroom? These are the questions that we must ask ourselves every time we are supposed to take a class. So how does our brain connect to learning? अब देखिए, जब अपना ब्रेन किस तरह से कनेक्ट करता है, आप देखिए अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इट सेज व्हेन यू गिव देम बुक्स, छोटे होते हैं बच्चे तो उनको बिग पिक्चर्स होनी चाहिए, बड़ी अट्रैक्टिव पिक्चर्स होती है, बड़े फॉन्ट में लिखी हुई वर्ड्स होने चाहिए, राइट? जब वो एक एक पेज पलटते हैं तो वो पिक्चर के थ्रू कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, राइट? फिर एनिमेशन, पपेट्स, पिक्चर्स, लाइव वीडियोस, ये अट्रैक्ट करता है बच्चों को, ये इनके दिमाग में रहती है। फिर टॉयज के थ्रू, जैसे छोटे क्लासेस में आपने नंबर एबेकस पजल है, डूडल मैट, जिगसॉ पजल, म्यूजिक कारपेट, फिंगर पपेट्स, अल्फाबेट्स, मैग्नेटिक टॉय, फोम मैथ्स, अलग अलग तरह के लर्निंग एड्स आजकल मिलते हैं, फ्लैश कार्ड्स है, वर्कशीट्स है। क्यों करते हैं? जिससे कि इनके इंफॉर्मेशन में थोड़ा और अट्रैक्शन बढ़ जाए। So that is why we use different tactics with the children, and then our brain connects instantly with information that they see. So I see, I play, I think, and then I learn, right? Learning happens when you see continuously, when you do an activity continuously, when you are thinking about that particular topic for a longer time and connecting it with some other information, right? That is when we learn as students, right? So how do we bring fun and joy in the classroom? I'm going to tell you 10 different ways that can be used by all of us to make learning joyful in class, right? So as educators, we have the responsibility to educate and inspire the whole child. बच्चे का माइंड, हार्ट एंड सोल, सब कुछ हमें बच्चों को इस तरह से एजुकेशन को प्रेजेंट करना चाहिए कि एवरीथिंग इज अफेक्टेड, माइंड इज अफेक्टेड, हार्ट इज अफेक्टेड, हार्ट अफेक्ट होता तो आप खुश होते हैं, राइट? एंड सोल इज अफेक्टेड, you're connected with the learning that is happening in the class, right? So by focusing on the following essentials, we can put more joy into students' experience of going to school and get more joy out of working inside one, right? तो स्कूल के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो टीचर्स कर सकते हैं जिससे कि joy is added in their learning? So let us go through it. Joy number 1 is smile. मैं हमेशा कहती हूँ कि एक टीचर जब अपने क्लास के अंदर एक स्माइल के साथ घुसता है, ऑलरेडी वो बच्चों को इन्फेक्ट कर चुका होता है अपनी स्माइल से, राइट? वी लर्न बेटर फ्रॉम दोज वी लाइक। स्माइल हम किसको देख के करते हैं? जो हमें पसंद होता है, राइट? हम अपने पसंद के लोगों को देख के स्माइल करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पसंद करते हैं तो स्माइल के साथ क्लास में एंटर करेंगे। इन रिटर्न द चिल्ड्रन विल डेफिनेटली स्माइल बैक बिकॉज दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, right? Smiling makes you approachable and likable, right? And the act of smiling can actually help you to feel happier, right? जब स्माइल करता है तो मन कहीं ना कहीं खुश जरूर होता है। बच्चा शायद ये भी सोचता होगा टीचर आज बहुत खुश है, अच्छे मूड में है शायद, ओ लेट अस एंजॉय द डे, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद चिल्ड्रन. Find the pleasure in learning is joy number 2. So if we want students to be charged with enthusiasm, if we want them to see school and learning as joyful, we need to rethink how and what we teach. हम किस तरह पढ़ाएं, ये हमें सोचना पड़ेगा और हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट? Let them enjoy learning as well as they enjoy games. किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। आप टीचिंग के बीच में रोक कर रख बोले कि नाउ इज क्विज टाइम, ओके फाइन, सो 3 रोज डिवाइड कर दें, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लेट अस सी व्हिच रो इज द विनर रो। आपने 4-5 क्वेश्चंस किए एंड यू पुट द मार्क ऑन द बोर्ड।
उसके बाद में हमने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर आपने रोका, फिर आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, बाय द सेकेंड राउंड the children will be paying more attention to what you're teaching. Reason being, they want their row to win, right? Happiness doubled with the joy of learning and with the joy of playing that game where I want to be victorious, right? So find ways to increase laughter in the classroom. अब ये भी कर सकते हो कि जैसे जो टीम जीत रहा है या हार रहा है, हारने वाली टीम को आपने एक टास्क दे दिया, वो टास्क ऐसा हो जिसमें कोई कोई मतलब मस्ती वाला एलिमेंट जुड़ा हुआ हो. So some kind of an activity which will make the class laugh also, or will add some kind of pleasure in the class, right? Third one is music and rhythm. Many of the things, remember, most easily are learned with songs. देखिए, छोटे क्लासेस में आपने देखा है टीचर्स राइम्स सिखाते हैं. कैसे सिखाते हैं? म्यूजिकल वे में. एग्जैक्टली, पोइट्रीज कई बार गा के सिखाई जाती है, राइट? कई बार ये भी होता है कि आप क्लास में किसी एक्टिविटी को जैसे रोल प्ले के थ्रू करते हैं या ड्रामेटाइजेशन के थ्रू करते हैं. जब आप उसमें एक डिफरेंट एलिमेंट डाल देते हैं, म्यूजिक तो बहुत, कई बार पता है, बहुत अच्छा तरीका होता है. बच्चों को बोलो कि ठीक है, ये टॉपिक है, इसको आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, रैप करके मुझे क्लास में ये प्रेजेंट होना चाहिए. आप देखिएगा कितने तरीके से बच्चे रैप म्यूजिक क्रिएट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, और लर्निंग न्यू हो जाती है क्योंकि वो तरीका चेंज हो गया है लर्न करने का, right? So they will remember much longer and have an easier time retrieving the information for a test. हम कहते हैं ना कई बार एक्रोनिम्स के थ्रू सीखना चाहिए. आप वो जैसे रेनबो कलर्स को आपने विबग्योर सिखाया है बच्चों को, राइट? तो वो हर जनरेशन के बच्चों को याद है क्योंकि वो एक बहुत क्विक तरीका है बच्चों को किसी चीज को सिखाने का. सो टीचर्स कैन हैव क्विक प्ले गेम्स के थ्रू, कोई ट्रिक्स के थ्रू उनको कोई चीज आप सिखा देते हो तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरह रहता है. जॉय नंबर 4 इज गिव स्टूडेंट्स चॉइस. ये बहुत अच्छा तरीका होता है. स्टूडेंट्स कांट ऑलवेज चूज व्हाट दे विल डू, बट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू गिव स्टूडेंट्स अ चॉइस. अब मैंने जैसे बताया कि आपने 3 रोज में डिवाइड किया, तो जो रो नंबर विनर रो है उसको आपने चॉइस दिया, ठीक है. जो विनर रो है उसमें के सारे बच्चों को ये चॉइस दिया जाता है कि विद इन देयर रो दे कैन सिट विथ a friend of their, they can choose their partner, they can choose their seat, and sometimes even you can tell them, you can choose the topic for some research work or reading or an activity which will come in the next week. बच्चे इस चीज को बहुत एंजॉय करते हैं, वेट करते हैं, और आप देखेंगे कि आपके क्लास में ऑलरेडी इतना इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा कि बच्चों को इन चीजों में एंजॉयमेंट लगने लगता है, लर्निंग भी हो रही है, साथ में उनकी इच्छाएं भी पूरी हो रही है. तो चॉइसेस कहीं ना कहीं आप दे सकते हैं. तो लुक इनटू अगेन आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी क्लास के बच्चों के मेंटालिटी कैसी, वो सब समझकर आप चॉइसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं. जॉय नंबर 5, लेट स्टूडेंट्स क्रिएट थिंग्स. जैसे मैंने आपको बताया, रोल प्ले हुआ, फोटोग्राफ कलेक्शन हो सकता है, बुलेटिन बोर्ड डेकोरेशन हो सकता है, सिंग सॉन्ग के थ्रू, डॉक्यूमेंट्री बनाना, पीपीटीज प्रेजेंट करना, ग्राफ बनाना, सर्वे करना, इंटरव्यूज, लॉट ऑफ थिंग्स, स्टोरी फॉर्मेट. तो आपके पास कई सारी चीजें मैंने आप लिखा है. यू कैन क्रिएट योर क्लासरूम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्रोशर्स, स्टोरीज, पिक्चर बुक्स, पोस्टर्स, PPTs, interviews, oral histories, models, diagrams, blueprints, floor plans, plays, role plays, mock trials, photographs, paintings, songs, surveys, graphs, documentary, videos, etc., etc., etc. You can let them, you can choose anything from them and give it to them to, create. Next one is joy number 6 is show off student work. अब देखिए, बच्चों से आपने इतनी सारी एक्टिविटीज करवाई है तो इसको आप एग्जिबिट करिए. आप क्लासरूम एग्जिबिशन कर सकते हैं. देखिए, इसमें ये हो सकता है कि 8th स्टैंडर्ड में से 5 डिविजन्स है, तो आपने पांचों डिवीजन के ये क्या बोलते हैं वर्क को कलेक्ट करके उसको आपने
क्रिएट कर दिया, एक एग्जीबिशन बना दिया, एक क्लासरूम में डिस्प्ले कर दिया, बुलेटिन बोर्ड पे कर दिया, या बच्चों को असेंबली में आपने रोल प्ले करा दिया, या प्रेजेंटेशंस दिखा दी. So show off your students' work. This is also something, because let me tell you, every child likes to be acknowledged. हर बच्चे को उसकी अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, और अगर वो टीचर करेगा तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. So make sure that you are appreciating the child's work. Joy number 7 is towards holistic learning. So the new challenge, अब हम 21st century skills के बारे में बात करते हैं, right? 21st century skills में क्या क्या है जो हम लोग यूज करते हैं. मैं बोलती हूँ ना, कोलैबोरेशन होना जरूरी है, क्रिएटिविटी होना जरूरी है. आपने बच्चों को इस तरह से सिखाया है जिससे कि लर्निंग बिकम्स बहुत कॉन्क्रीट हो जाए उनके दिमाग में. सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू, रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू आप होलिस्टिक लर्निंग को किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं. आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू, सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके, इंग्लिश को आपने हिस्ट्री के साथ कोरिलेट किया, आपने एक पोइट्री पढ़ाई है जिसमें कोई किसी फ्लावर्स के बारे में बात करें तो उसको अपने साइंस के साथ जोड़ लिया, उसको आपने जनरल नॉलेज के साथ जोड़ लिया, तो ये आपका कोरिलेशन हो गया. सो हाउ डू यू वर्क ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम. जॉय नंबर 8 इज गेट आउटसाइड. पूरे दिन क्लास में 8 पीरियड बच्चे क्लास के अंदर बैठे, ये सही नहीं है. कई बार मतलब आप टर्न बाय टर्न अपने क्लास का वेन्यू चेंज कर दीजिए. गार्डन में बिठा के पढ़ा दीजिए, ग्राउंड में ले जाके पढ़ा दीजिए, एक्टिविटी रूम में पढ़ा दीजिए, कहीं भी अलग जगह ले जाकर उनको पढ़ाइए. चिल्ड्रन विल एंजॉय इट. सी, लर्निंग in a garden is something that they would enjoy. You वो feel करते हैं, लॉन में बैठे हैं, घास को फील कर रहे हैं, हरियाली चारों तरफ देख रहे हैं. That feeling is different. Sometimes it helps. You ask them for different presentations, live presentations, जैसे role play है या dramatization है. Instead of doing it in the classroom, you can do it in an open air. They will enjoy it more. Okay. Joy number 9 is read good books. Everyone loves a good book. All students enjoy a good story. So allow students beyond your text simply for the sake of student enjoyment. कई बार आप कोई ऐसा रीडिंग मटेरियल ले जाके क्लास में पढ़ के सुनाइए बच्चों को, जिससे कि पढ़ाई से रिलेटेड भी हो पर कुछ अलग हो. कई बार वो इंफॉर्मेशन जब वो अलग से सुनते हैं तो दे एंजॉय इट अ लॉट, राइट? And evidence shows that children who enjoy their education are likely to learn more and experience greater personal development. When you read out to them, they will also develop the habit of reading. You can give them suggestions of names of books that they can read, or you can give them books, list of books from your own school library also. Library में आप explore करिए और फिर बताइए, ठीक है, I'm going to put 5 names of books on the board, and I would want all of you to pick that book at least once and read it. So this is something that you can do. And joy number 10 is use fun reinforcers. So you can quickly teach students to give themselves a round of applause. देखिए, जब बच्चा कुछ अच्छा करता है, ये देखो एक लिखा है यहाँ पे साइड में, give yourself a pat on the back. कोई भी अच्छा करे बोलो अपने आप को शाबाशी दो, right? And yes, thumbs up, high five, all these things, and clapping for the children, or using some special words for children who come up with very good information in the classroom. You can create titles for the children. So this week's champion student of the class is this, or this week's researcher of the class is this. आप create करिए, coin करिए words को जो आप बच्चों के साथ use कर सकते हैं, and this can be used as a reinforcer for them. They will feel very good, motivated, and they would look forward to coming up with more and more informations, right? I hope you like this, right? So let us teach our children the following for joyful learning. ये कुछ pointers हैं जो आपको उनको सिखाना जरूरी है. First of all, slow down. When do you slow down? When there is too much going on in your head. तो आपको बच्चों को बताना है कि pace it out. सब चीजें हम एक ही सांस में नहीं हासिल कर सकते, तो अपने लेवल के हिसाब से काम को पेस आउट करिए.
और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है, शांत होना भी बहुत जरूरी है। शांत होने के लिए बिटवीन टू क्लासेस आप जैसे क्लास पे एंटर करते हैं, बच्चों को बोले ओके फाइन, वी विल ऑल क्लोज आवर आईज फॉर अ मिनट and then we will take 3 deep breaths and then we will begin the class. काम हो जाता है, माइंड एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है, राइट? बी पॉजिटिव, टेल चिल्ड्रन दैट वी हैव टू बी पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक शायद not so good होगा, the other one will be definitely a positive one. And tell things that you tell children that you have to take it easy. हमेशा अपनी लाइफ में आने वाली मुसीबतों को one at a time लेने की कोशिश करो. Unplug yourself in too many things are in your mind. So after you go back from school, you should tell them, okay, 30 minutes are your time, that is your time, and you will utilize it for doing something that you like the most. Whether you like to listen to music, dance, anything, let them do it. And tell them to enjoy life. Life is to be enjoyed, not to be stressed all the time. बहुत परेशानियां होंगी पर खुशियां भी है, तो बैलेंस करना सीखना है, right? Have fun. So to have fun, what is it that you would like to do? Go outdoor and play, make friends, talk to friends, spend time with your family, read good books, watch something informative, anything. Breathing, वो बोलती हूँ ना, deep breaths, three times deep breathing between every one period or something, or whenever you feel tired. Relax करना बहुत जरूरी है. 8 hours of sleep is important. This is what you should tell them. Go outside, नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. अपने कमरे से बाहर निकलना जरूरी है. बैल्कनी में जाइए, टेरेस पे जाइए, गार्डन पे जाइए, पर कहीं पे भी जाइए. स्माइल करना बहुत जरूरी है. नेवर सिट विथ अ ग्रम्पी फेस. एंड मेडिटेशन बच्चों के लिए मुश्किल होता है मेडिटेशन, पर आप उनको सिर्फ ये कह सकते हैं, किसी भी एक चीज को फोकस करके आप 100 तक भी काउंट कर लेते हैं, आप क्लोज करके किसी एक चीज को आप दोहराते रहते हैं, तो भी वो मेडिटेशन का काम करता है, राइट? So this is something that you can tell them. So learning styles that teachers should incorporate in the classroom. मैंने जैसे बताया NEP 2020 के थ्रू हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है आजकल. So experiential learning, hands-on learning, art integrated, sport integrated education, storytelling based pedagogy are all the things that these days we are trying to do in school. देखिए ट्रेडिशनल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में फर्क होता था. ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या होता था, टीचर सेंटर्ड होता था, टीचर फोकस्ड होता, टीचर को जो मन में आया सिर्फ वही पढ़ाया जाता था. पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है कि वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है. बच्चे किस तरह से लर्न करना चाहते हैं, व्हाट इज इट दैट विल मोटिवेट देम टू लर्न बेटर इज व्हाट यू लुक एट, राइट? लर्निंग आउटकम्स आर प्रिस्क्राइब टू अ फिक्स रूब्रिक और स्कोरिंग सिस्टम. ट्रेडिशनल में क्या होता था, हम क्यों पढ़ाते थे, क्योंकि एग्जाम में रिजल्ट में नंबर आने चाहिए, राइट? नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज लर्निंग आउटकम क्यों होने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस लर्निंग के थ्रू डे टू डे सिचुएशन में आप लर्निंग को अप्लाई कर सकें, राइट? ट्रेडिशनल लर्निंग में एक्सप्लेनेशन एम टू एक्सप्लेन नॉलेज एंड और स्किल्स बाय ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन. आपने जो सिखाया, क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए, बच्चों ने रट के लर्न किया, वही एग्जाम में आपने लिख दिया. दिस वाज ट्रेडिशनल लर्निंग. आज के एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आपने एक्टिविटी करवाई, उनसे कुछ सिखाया और उसको आपने किसी तरह से प्रेजेंटेशन बनवाया या एक्टिविटी कराई या कोई एक्सपेरिमेंट करवाया, तो वो लर्निंग ट्रांसफर होता है थ्रू एक्सपीरियंस, राइट? ट्रेडिशनल में फिक्स्ड स्ट्रक्चर, हाई डिग्री ऑफ फैसिलिटेशन होता था, और आजकल फ्लेक्सिबल वे ऑफ लर्निंग होता है, मिनिमल फैसिलिटेशन बाय द टीचर. सब कुछ टीचर नहीं सिखाता, बच्चों को भी एक्सप्लोर करना पड़ता है. सो पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी वो होती है जो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है, राइट? द लेंस इन विच वी प्लान, कैरी आउट एंड रिफ्लेक्ट ऑन आवर टीचिंग. हम क्यों पढ़ा रहे हैं, इससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं.
So the art and science of teaching is pedagogy, and we give a lot of information, lot of insistence on pedagogical understanding of anything that we teach in the class. So experiential learning क्या होती है? The method by which first hand experience बच्चे feel कर सके. इसमें आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आपने एनिमल लाइफ पढ़ाना शुरू किया. अब एनिमल लाइफ आपने पिक्चर्स दिखा दिए और इंफॉर्मेशन बता दी. इसकी जगह अगर आप उनको किसी जू लेके जाते हैं या एनिमल बर्ड सेंचुरी या एनिमल सेंचुरी कहीं लेके जाते हैं, तो बच्चे देखकर इंटरैक्ट करके ज्यादा सीखते हैं. सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैन बी थ्रू फील्ड ट्रिप्स ऑल्सो. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, फील्ड ट्रिप एंड हैंड्स ऑन लर्निंग. एक्सपेरिमेंट करना हैंड्स ऑन लर्निंग हो गया. फील्ड ट्रिप देख के जाके समझ के सीखना. प्रोजेक्ट बेस्ड, जैसे आपने उनको प्रेजेंटेशंस बनवाए या कुछ करवाया ऐसे, तो वो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करता है. राइट. सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में देखिए क्या क्या है. हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, फील्ड ट्रिप, project based, internships, and learning by doing all these things. So try, go, use, meet new things, new places, new tools, and new faces. This is what is about experiential learning. Try new things, go new places, use new tools, and meet new faces. अब आप देखिए इसमें पूरा experiential learning covered है. Right? सो स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग भी बहुत अच्छी जरूरी होती है. अगर आपने देखा होगा स्कूल्स में आजकल इस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. फिटनेस से रिलेटेड देखिए, फिटनेस क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर माइंड फिट रहेगा तो आपका बॉडी में फिटनेस और आपकी अलर्टनेस बढ़ती है. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम स्कूल्स में जैसे आजकल इंसिस्ट करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्लास होना जरूरी है, योगा करना जरूरी है. किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को किस किस चीजों में हेल्प करता है. टाइम मैनेजमेंट, इट एनहांसेस डिसिप्लिन, लीडरशिप स्किल्स आती है, टीम वर्क. ऑल दिस इज लर्न्ड थ्रू स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन. स्टोरी टेलिंग पेडागोजी, देखिए स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं. जो मेथड है, जो प्रैक्टिस है टीचिंग का थ्रू स्टोरी टेलिंग इज समथिंग विच इज वेरी 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 इफेक्टिव. किसी भी चीज को अगर आप ड्रामेटाइज करके सिखाते हैं, मैं बताती हूँ कि ज्योग्राफी के टॉपिक्स तक को लोग स्टोरी टेलिंग फॉर्म में सिखाते हैं. जैसे आपने काइंड्स ऑफ रॉक्स पढ़ाना शुरू किया, आपने फैमिली बताई, रॉक फैमिली में 4 बच्चे थे, इग्नियस रॉक, इस तरह से आपने अलग अलग रॉक्स के नाम बताए उनको और उसकी एक स्टोरी बिल्ड करके बच्चों को बताना शुरू किया. साइंस में, सोशल स्टडीज में, सब सब्जेक्ट्स में आप यूटिलाइज कर सकते हो. थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग का काम करना पड़ेगा, पर डेफिनेटली इट वर्क्स. राइट. स्टोरी टेलिंग इज अ फैबुलस वे इन विच कंसंट्रेशन कैन बी बिल्ट इन स्टूडेंट्स. क्योंकि जब आप बच्चों को सुनाते हैं और वो बहुत क्रिएटिव वे में उसमें बहुत सारा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, क्यूरियोसिटी सब ऐड करते हैं. कुछ वर्ड्स को आप इतना बच्चे की क्यूरियोसिटी बिल्ड करते हैं वर्बल एक्सप्रेशंस के थ्रू, तो उससे भी बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं. आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, आर्ट के थ्रू आप कितना कुछ सिखा सकते हो. जब आर्ट का मतलब सिंपली ड्राइंग नहीं है. A pedagogy where art becomes the basis of teaching learning process will help the students to have joyful and experiential learning. देखिए ये वाला पिक्चर देखिए. अब आप देखिए इसमें कितने तरह की एक्टिविटीज दिखाई गई हैं. विजुअल में है, आप देखिए पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, स्टेज आर्ट, क्ले मॉडलिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट. उसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक है, वोकल म्यूजिक, डांस, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, थिएटर, पपेट्री, माइमिंग, स्टोरी टेलिंग, मार्शल आर्ट, मैजिक परफॉर्मेंस, सिनेमा. अब देखिए आर्ट के ही कितने सारे फॉर्म्स हैं. आप चाहे विजुअल आर्ट की बात करें या परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, आपकी एंटायर पढ़ाई को आप किसी न किसी आर्ट फॉर्म के थ्रू पढ़ा सकते हैं. आप बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करवा सकते हैं. देखिए कितनी सारी चीजें, माइमिंग है, माइम के थ्रू आप कितनी सारी चीजें कन्वे कर सकते हैं. थिएटर के थ्रू, डांस के थ्रू,
पॉटरी वगैरह आपने सिखाई उनको, पपेट्री सिखाई, ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिससे कि सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है. So can we all try and add few of these joy adding qualities in us? हम as teachers, can we have these qualities in us? Number one, being patient. Teacher has to learn to be patient. Teacher has to learn to be kind. Teacher has to be a compassionate person. Compassionate, अंदर आपका आपका दिल बड़ा होना चाहिए. बच्चों की हर समस्या को सुनने का मन भी होना चाहिए. मदद करना सेकंड स्टेप आता है, पहले सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है. बीइंग इंस्पिरेशनल, इंस्पायर करिए बच्चों को. बीइंग फेयर, कभी भी बच्चों के साथ में पार्शियलिटी ना करिए और प्रेफरेंशियल लाइकिंग ना करिए. ये बच्चे मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है. नो, in your eyes everybody should be fair in your eyes. Being genuine, आप बिल्कुल एक genuine person बनिए, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं. बच्चों से जो कहते हैं वही आप करके दिखाइए. वैल्यूज अपने अंदर होगी तब हम बच्चों के साथ उसको फॉलो करने की बात कर सकते हैं. राइट. बीइंग पैशनेट अबाउट बीइंग अ टीचर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं करता हूं बच्चों के साथ उसमें पैशन भरा हो. राइट. बीइंग अप्रोचेबल, ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए. देखिए, एज अ when I was a principal of a school, right now I am completely into teacher trainings, but when I was a principal of the school, I used to practice open door policy. My door would always be open for teachers and students. No fear of coming and speaking to you about anything that bothers you. So open door policy should be followed by every one of us. Being accommodating, बच्चों को अकोमोडेट करिए. कई बार होता है कि नहीं हो सकता है, पर फिर भी कोशिश करके किस तरह उसकी मदद करी जा सकती है ये सोचना चाहिए. इंटरेस्टिंग होना चाहिए, टीचर को बोरिंग नहीं होना चाहिए. खूब मजे से बच्चों को सिखाना, उसमें खूब इंटरेस्टिंग चीजें बताना, ये एक टीचर को करना आना चाहिए. सो अल्टीमेटली आवर एम इज टू सी जॉय फिल्ड चिल्ड्रन इन द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल. स्कूल के अंदर भी खुश रहें और स्कूल से जब निकल कर जाए तो भी वो खुशी के साथ जाए. सो नो मैटर व्हाट वी शुड सेंड आवर स्टूडेंट्स होम ईच डे विद एटलीस्ट वन थिंग टू स्माइल और लाफ अबाउट. कोई एक चीज ऐसे बच्चों को बताइए जो वो खुशी से घर जाके अपने माता पिता को बताए जरूर. एंड वी शुड मेक अ बिग डील अबाउट दैट वन थिंग. छोटी सी बात हो लेकिन उसको वो बच्चा इतना महसूस करके खुश हो, ये बहुत जरूरी है. आई थिंक वी ओव देम दैट मच. हमको बच्चों के चेहरों पे जेन्युइन स्माइल देखना चाहिए. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी that they are happy in the classroom and that they are genuinely happy in the classroom, right? So before we end, let us ponder on these thoughts. Play gives children a chance to practice what they are learning. तो जब आप किसी एक्टिविटी के थ्रू करते हैं तो they are actually practicing what they have learned, right? We are not just teachers, we are the managers of the world's greatest resource, and that is children. Children are great imitators, so give them something great to imitate. बच्चे हमसे सीखते हैं तो अच्छी सी चीज सिखाएंगे तो वही वो लोग कॉपी करेंगे. राइट. Play is the only way the highest intelligence of humankind can unfold. And singing is best. It gives right joy to speech. गाना आपके एक्सप्रेशन को अच्छे से लोगों तक पहुंचाता है. राइट. What we learn with joy, we never forget. And make education continuing, never ending process. एक continuous process होना चाहिए learning. It should never end. Lifelong learners, we as teachers should be lifelong learners, and we should make our children also lifelong learners. So thank you so much for being part of this session. I would say a wise teacher makes learning a joy, and the best teachers are those who show you where to look but don't tell you what to see. क्या दिखाते हैं आप कई चीजें, पर सीखना आपको उसमें से खुद पड़ता है. So be that kind of a teacher. Thank you so much for being part of this session. I hope whatever I spoke today has been, has got across you well, and that you have understood what I've tried to say. ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि देखकर आप भी उसको बच्चों के साथ फॉलो कर सके.
Thank you so much for being part of this session. If there are any questions, I'm open to taking up in the chat box. You can put your questions in the chat box. I can answer the questions there. Thank you so much for the kind words which are pouring in the chat box. It makes my day. Definitely, when I come and present a session for teachers, my only intention is to see that you learn out of it and that you practice what you learn. Thank you. Thank you, ma'am. It was such an inspiring webinar today. We greatly enjoyed your each and every words. It was very capturing event, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you so much. आप सबका धन्यवाद जिसने भी आज का सेशन अटेंड किया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सेशन आई होप each one of you will take away something with you and follow it in the classrooms. Yes, somebody says I have a question. You can put it down, Praveen. You can put it down in the chat box. I will try to answer your question.